Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Family Law. So from today, we will start a new chapter that deals with a Parsi succession. So in the previous videos, we have discussed the Christian succession. You can watch that particular video from my YouTube channel. You can select the playlist of Family Law and where you will get the topic of Christian succession. So in this particular lecture, we will discuss part first of Parsi succession, that is section 50 and 51 of Indian Succession Act 1925. We will discuss under this particular lecture. So without wasting your much time, let us proceed towards our topic. So rules of succession in case of Parsi. Suppose whenever the Parsi dies intestate, अगर पारसी की डेथ होती है, so in what manner his property will be distributed among his legal heirs. तो उसके legal heirs में उसकी property किस तरीके से distribute होगी, हम ये discuss करने वाले हैं. So general principles relating to intestate succession, that is discussed under section 50. General principle relating to intestate succession. So for the purpose of intestate succession among Parsis, there is no distinction between those who were actually born in the lifetime of a person deceased and those who conceived in the womb. So whenever the property of any Parsi is to be distributed among his legal heirs, then there will be no difference between the two persons, one who is actually born in the lifetime of intestate and another who is in the womb of mother at the time of intestate death. तो जब कभी भी प्रॉपर्टी किसी पारसी की हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो पर्सन में डिफरेंस नहीं रहेगा. एक ऐसा पर्सन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त दो पर्सन में डिफरेंस नहीं रहेगा. एक पर्सन जो उस पारसी की डेथ के वक्त एक्चुअली एग्जिस्टेंस में था, मतलब वो अलाइव था, वो जिंदा था, एक्चुअली वो लाइफ टाइम उसके था वो, और दूसरा पारसी की डेथ के वक्त ही वाज इन द वूम ऑफ मदर, वो मां के वूम में था. सो there is no difference between these two. Suppose if the Parsi dies intestate, leaving behind one son, and if another son is in the womb of mother at the time of death of intestate, then the property will be distributed between these two persons, one who is actually in the world and another one who is in the womb of mother. दोनों में equally property distribute होगी. एक जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है और दूसरा इन द वूम ऑफ मदर है, दोनों में प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्सन. एक्चुअल एग्जिस्टेंस में और मां के वूम में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. दैट इज जनरल रूल. देन a lineal descendant of an intestate who has died in the lifetime of an intestate without leaving a widow or widower or any lineal descendant, or widow or widower of any lineal descendant shall not take into account in determining the manner in which the property of which the intestate has died intestate shall be divided. Suppose if any Parsi dies intestate and in the lifetime of a Parsi if his any son dies, मतलब पारसी की डेथ हुई और जब पारसी जिंदा था तभी उसके एक आधे लड़के की डेथ होने वाली रहेगी, और वो लड़के की ना तो विडो उसने पीछे छोड़ा ना तो उसके कोई बच्चे हैं. तो उस सिचुएशन में जब कभी भी पारसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ऐसा बच्चा जो उसकी पहले डेथ होने वाली है और ना तो उसकी विडो है ना तो उसके बच्चे हैं, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा सक्सेशन में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त. तो अगर फॉर एग्जांपल एक पारसी के तीन लड़के थे, पारसी की डेथ हो गई, लेकिन एक लड़के की पारसी के लाइफ टाइम में ही डेथ हो गई भी है और ना तो उसकी वाइफ है ना तो उसके बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो लड़का था जिसकी डेथ हो गई उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी बच्चे वाले दो लड़कों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो दैट इज अ सेकंड जनरल रूल मेंशन अंडर सेक्शन 50. नाउ द थर्ड वन इज वेयर अ विडो or widower of any relative of an intestate has married again in the lifetime of the intestate,
such widow or widower shall not be entitled to receive any share of property of which the intestate has died intestate, and such widow or widower shall be deemed not to be existing at the instated date. Another thing is that, suppose if any child predeceased to the intestate, and if that particular child left a widow, but if that widow remarries in the lifetime of intestate, then such widow will not be considered for a succession. वो widow को consider नहीं किया जाएगा. That widow is considered as she is not in existence at the time of intestate death. For example, कि सपोज एक आधे पारसी की डेथ होती है, जैसा हमने पहला एग्जांपल डिस्कस किया था कि 3 लड़के थे, उसको एक लड़के की पारसी के लाइफ टाइम में ही डेथ हो गई, लेकिन उसकी विडो थी, और वो विडो ने जब पारसी जिंदा था तभी वो उसके लड़के के विडो ने दूसरी मैरिज कर ली, दूसरी शादी कर ली फॉर एग्जांपल. तो जैसा दूसरी उसने मैरिज की, अब अगर पारसी की डेथ होती है तो वो विडो को सक्सेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा. ऐसा ट्रीट होगा कि जब पारसी की डेथ हुई तो वो विडो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी. ये दोनों लड़कों को प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी. सो दैट इज अ थर्ड प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 50. ये सेक्शन 50 का तीसरा प्रिंसिपल था. अब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, वो सेक्शन 51 है. डिवीजन ऑफ इंटेस्टेट्स प्रॉपर्टी अमॉन्ग विडो, विडोवर, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. Suppose if any Parsi dies intestate, leaving behind a widow or widower, children and parents. अगर एक पारसी की डेथ होती है, अगर फॉर एग्जांपल वो मेल है, मेल की अगर डेथ होती है और उसने उसकी विडो पीछे छोड़ा है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अगर फीमेल की डेथ होती है तो उसका विडोवर है, पेरेंट्स है और बच्चे हैं, तो इन व्हाट मैनर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 51. ये 51 में डिस्कस किए हुआ है. सो वेयर सच पार्सी डाइज लिविंग अ विडो और विडोवर एंड चिल्ड्रन, द विडो और विडोवर एंड ईच चाइल्ड रिसीव इक्वल शेयर. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, सपोज इफ एनी पार्सी डाइज लिविंग बिहाइंड अ विडो और विडोवर एंड हिज चिल्ड्रन, then whatever the property Parsi was having, that property will be equally distributed amongst the widow and children, among the widower and children. तो अगर प्रॉपर्टी सिर्फ हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है विडो में और बच्चों में, तो विडो और बच्चों में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. यहां पर अभी पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है. प्रॉपर्टी अगर बच्चों में और विडो या विडोवर में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने की है तो उनमें इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. दूसरा, वेयर सच पार्सी डाइज लिविंग चिल्ड्रन बट नो विडो और विडोवर अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन इक्वल शेयर. दूसरा भी ये बोलता है कि अगर पारसी की डेथ होती है बट ही लेफ्ट नो विडो, बट उसकी विडो नहीं है, बट ओनली चिल्ड्रंस आर देयर, देन हिज प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हिज चिल्ड्रन. पारसी की डेथ हो गई, उसकी विडो नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, तो पारसी की प्रॉपर्टी उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. ये दूसरा एग्जांपल है. थर्ड वन इज वेयर अ पारसी डाइज लिविंग वन और बोथ पेरेंट्स. In addition to children or widow or widower and children, the property of which such Parsi dies intestate shall be so divided that the parent or each of the parents shall receive a share equal to half of the share of each child. Suppose if the Parsi dies, leaving behind a widow, his children as well as the parents, father and mother. Parsi की डेथ हो गई, उसने पीछे क्या छोड़ा, उसकी विडो भी है, उसके बच्चे भी है, पेरेंट्स भी है. अंडर सच सर्कमस्टांसेस पेरेंट विल गेट हाफ एज द शेयर ऑफ सन एंड विडो. तो पेरेंट्स को कितना मिलेगा, हाफ. फॉर एग्जांपल अगर शेयर जो है कि अगर चिल्ड्रंस को 2 लड़के हैं और विडो है, अगर तीनों को फॉर एग्जांपल 10-10 रुपये मिल रहे हैं तो फादर को 5 और मदर को 5, जितना शेयर सन को और विडो को मिल रहा है उससे हाफ शेयर पेरेंट्स को मिलेगा. तो दैट इज अ थर्ड थिंग. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विथ एन एग्जांपल. हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे इसको. तो ये पहला था कि अगर पारसी की डेथ होती है, इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड चिल्ड्रंस, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. सपोज इफ दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेट एंड देयर आर अ चिल्ड्रंस एंड विडो. अब यहां पर पारसी की डेथ हो गई, विडो भी है, बच्चे भी है,
तो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. विडो विल गेट 1/4, first daughter will get 1/4, son will get 1/4 and daughter will get 1/4. So whatever the property Parsi is having, that property will be equally distributed amongst the widow and his children. विडो तो उसके चिल्ड्रन में और विडो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. ये पहला पार्ट था जो हमने डिस्कस किया. तो ये था कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये अगर प्रॉपर्टी है तो 25 रुपीस चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी प्रॉपर्टी. अब दूसरा एग्जांपल था अगर पारसी की डेथ होती है एंड ही लेफ्ट नो विडो बट ओनली चिल्ड्रंस, देन प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स द चिल्ड्रन. फॉर एग्जांपल if this particular person dies leaving behind, विडोवर, हमने देखा था कि अगर ये सपोज वुमन की डेथ हो गई यहां पर, तो विडो और विडोवर का सेम राइट हमने देखा था. ये वुमन की डेथ हो गई है और अगर उसका विडोवर है और बच्चे है तो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. विडोवर को 1/4, डॉटर को 1/4, सन को 1/4 और डॉटर को 1/4, मतलब 25 रुपए चारों में जाएगी. तो विडोवर को और विडो को शेयर एक जैसा ही मिलेगा. अब दूसरा हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे. अगर पारसी की डेथ होती है, विडो नहीं है, सिर्फ चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी. ये था पारसी डाइज इंटेस्टेड लीविंग बिहाइंड ओनली चिल्ड्रंस एंड देयर इज नो विडो. सिर्फ बच्चे ही है, 2 डॉटर 1 सन है. प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द चिल्ड्रन. डॉटर को 1/3, सन को 1/3, दूसरी डॉटर को 1/3. जितनी प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही, 33 रुपए 33 पैसे तीनों को इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉपर्टी. सो द प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन इफ देयर इज नो विडो. विडो रही तो विडो के साथ बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. विडो नहीं है तो बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर विडो बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स थे तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. अब एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं. तो फॉर एग्जांपल this particular Parsi dies intestate leaving behind a children as well as widow and father and mother. अब यहां पर पारसी को विडो भी है, बच्चे भी है, फादर और मदर भी है. प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसी होगी? सो ये दोनों को 1/10 मिल जाएगा. 1/5 1/5 1/5 1/5. मतलब जितना शेयर सन, डॉटर और विडो को मिल रहा है उससे आधा शेयर फादर और मदर को मिलेगा. यहां 1/5 मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 रुपये प्रॉपर्टी है, हम एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करते हैं. 100 रुपये प्रॉपर्टी है तो 20 रुपए डॉटर और सन को मिलेंगे, 20 रुपए विडो को मिलेंगे और 10 रुपये फादर और मदर को मिलेंगे. जितना शेयर विडो और सन को, डॉटर को मिल रहा है उससे हाफ फादर और मदर को शेयर मिलेगा. सो दिस इज अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ चिल्ड्रंस, विडो एंड फादर एंड मदर अंडर सेक्शन 51. आई होप you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the like button, press the notification button and share this video with your friends. Thank you very much.